this is going to be our first video, and this video is all about how I started freelancing at Chegg or how you can start freelancing at Chegg. So यार, some of you must be knowing what is Chegg, and most of you must not be knowing what is Chegg. तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ what is Chegg. Chegg is just a Q&A platform. Basically यहाँ पर तुम आओ, तुम अपना अकाउंट बनाओ और यहाँ पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और यू वांट टू आस्क डाउट्स, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू बाई ए सब्सक्रिप्शन. उसके बाद तुम अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, और जो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं चेक प्लेटफॉर्म पे, दोज विल बी आंसरिंग टू योर क्वेश्चंस एंड यू विल बी गेटिंग अ रिस्पॉन्स. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म where you can get quick responses, or this is one of the best platform for the person who wants to start freelancing as a Q&A expert. So yeah, why I am making this video? So the sole reason of making this video is just because the number of leads, the number of questions that I have solved on Chegg. So let me just go through it once. So I'll be just telling you the number of answers that I have given so far on Chegg. So as you can see, so this is my number 969. So this is the total number of questions that I have solved on Chegg so far. So let me just go further ahead. तो यार देखो यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं. सम ऑफ द क्वेश्चंस में तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे कुछ नेगेटिव रेटिंग्स ज़्यादा हो गई है, बट इक्वली कुछ क्वेश्चंस में पॉजिटिव रेटिंग्स ज़्यादा भी है. तो यार अब दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई सॉल्व 969 क्वेश्चंस सो फार. तो यार सबसे पहले I just created my I created my Chegg account. That was the month of March. जब कोविड का सेकेंड वेव आया उस टाइम पे मैंने Chegg का दूसरा अपना पहला अकाउंट बनाया, और उसके बाद मार्च में आई थिंक मेरा जब अकाउंट था, जब मुझे उसका एक्सेस मिला तो इट वाज आई थिंक 15 और 16 मार्च उस टाइम तक हो गया था. तो बचे हुए 15 दिन में आई सॉल्व अराउंड 100 क्वेश्चंस ऑन Chegg, एंड दिस वाज द फर्स्ट फेज वेयर that the questions that I used to pick, I have to sit for too many hours to just get a single question to solve. But I gave 15 days and I was able to solve around 100 questions. तो यार ये मार्च में था, मार्च में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, और उसके बाद देन इट स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट मंथ एंड अप्रैल. नाउ बिकॉज आई वाज हैविंग पेस, एंड इन अप्रैल आई थिंक आई जस्ट सॉल्व अराउंड, if I'm not wrong, it should be around 400 questions, and at that time there was bonus on Chegg as well. So I was getting pretty decent amount, and I was like too much of solving, I was involved in too much of solving these problems, so I just solved around 400 problems in April. And May was I would say May is the peak time, because जब Chegg पे जो भी लोग questions post करते हैं ना, वो लोग mostly based out of foreign, like they are not from India. There will be a couple of, but it's very less. So most of them are from foreign, and ये उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टाइम होता है. तो यार मई में जो क्वेश्चंस का वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा पीक पे रहता था. तो Chegg यार उस टाइम पे बोनस बहुत ज़्यादा बोनस देता था. तो आई सॉल्व अराउंड 300 क्वेश्चंस इन में, एंड उस टाइम पे बोनस बहुत ही ज़्यादा था. तो यू विल बी गेटिंग यू कुड हैव गॉट अ वेरी डिसेंट अमाउंट, एंड सो आई थिंक दिस सम्स अप अराउंड 800 क्वेश्चंस. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग. आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय प्रोफेशन, सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर माई फर्म. सो आई कुड नॉट गेट मच टाइम, बट आई यूज टू सॉल्व अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो यार थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके like 3 months I solved around 800 problems, but for the next 169 problems, yeah, I just solved 4-5 problems a week or something like that. And इसके हिसाब से कुछ 4 या 5 महीने में it took 4 or 5 months, and I was able to come up at the stage of 969. Now why I am making with this video is just to show you how you can start your freelancing journey. And if you are a computer science graduate, or if you are pursuing your BTech in computer science, then this video is mostly meant to you. But if you are from other backgrounds, maybe you are from mechanical engineering or non BTech graduates, or maybe you are from commerce, I would say if you want to watch this video, then it's pretty fine. But I won't be discussing anything that will be relevant to you. So यार अगर तुम computer science graduate हो and you want to start freelancing and Chegg, तो यार सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट है expert.chegg.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो, अपना अकाउंट बनाओ. वहाँ पे तुम लोग को अपनी मुझे ध्यान है जितनी मुझे डिटेल्स डालनी पड़ी थी, तो वन वाज माय पैन कार्ड डिटेल, मेरा ग्रेजुएशन का आई थिंक मेरे कॉलेज का कोई रिजल्ट, या फिर मेरे कॉलेज का कोई आईडी कार्ड मुझे डालना पड़ा था. तो कुछ बेसिक डिटेल्स थी, और उसके बाद वहाँ पे शायद दो टेस्ट मुझे देने पड़े थे. द वन वाज अ सब्जेक्टिव टेस्ट दैट वाज रिलेटेड विद टेक्निकल नॉलेज, एंड another test was related with the guidelines of Chegg. So basically the guidelines are something just like कि तुमको किस तरह से आंसर देना है, किस तरह से आंसर नहीं देना. दैट इज़ वेरी जनरल, लाइक अगर तुम देखोगे तुम वो आंसर कर दोगे. बट सब्जेक्टिव टेस्ट, दैट आई वुड से दैट वाज आल्सो वेरी इजी.
उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। तो यार अगर तुम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो, तुमको ठीक ठाक नॉलेज है, तुम जाओ चेक पे अकाउंट बनाओ, एंड आई थिंक दिस शुड बी वर्किंग। तुम लोग को ज़्यादा कुछ एफर्ट्स देने नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद अगर उन लोगों के पास रिक्वायरमेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट द केस कि हर टाइम तुमको हायर किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इफ दे आर हैविंग रिक्वायरमेंट देन यू विल बी क्वालिफाइड, अदरवाइज दिस माइट बी द केस दैट यू आरंट क्वालिफाइड टू गेट एक्सेस टू दिस Q&A अकाउंट फॉर चेक। तो यार जाके एक बार अकाउंट बनाओ, और उसके बाद लाइक आई हैव सॉल्व 969 प्रॉब्लम्स ऑन चेक, सो आई जस्ट नो अ कपल ऑफ topics in a computer science that you can focus to make this check journey successful. So यार अगर तुमने बीटेक सही से किया, थोड़ा तमीज से बीटेक किया होगा, अगर 4 साल में थोड़ा ढंग से मेहनत की होगी, ढंग से चीज़ें पढ़ी होंगी, तो मोस्टली 4-5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक के, यार एक तो होता है डेटाबेस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नेटवर्किंग, और उसके अलावा एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये अगर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल नॉट गेट ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रॉम देम, but yeah, there will be a couple of amount, I would say 50 to 60% of the questions that you will get will be based out of it. Either it will be programming algorithm, data structure is a rare case, it will be operating system, it will be DB, it will be based on database queries, or it will be based on networking, so you'll be getting most of the problems from there. एंड उसके अलावा जो टॉपिक्स वहाँ पे कवर किए जाते हैं, या सबसे बड़ा, सबसे जो मेजर टॉपिक होता है चेक पे, वो होता है मैटलैब। अगर तुम लोग बीटेक में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट होता है न्यूमेरिकल मेथड। अगर तुम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट पढ़ा है और तुम लोग को मैटलैब आता है, सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी यार 4 चांद लगा देगा तुम्हारी चेक की जर्नी में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। तुम जाके देखोगे हर दूसरे तीसरा क्वेश्चन होगा तुम लोग का मैटलैब से रिलेटेड होगा। उसके अलावा आता है आर प्रोग्रामिंग, एंड आई टोल्ड यू दैट की प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग, उसके अलावा बाकी जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो तुमने सेमेस्टर में पढ़ी होगी, सी, जावा, पाइथन, एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और उसके अलावा एक टॉपिक होता है ऑटोमेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पंपिंग लीमा से रिलेटेड, पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड, तुमसे ट्यूरिंग मशीन बनाने को बोलेगा, डीएफए बनाने को बोलेगा, एनएफए बनाने को बोलेगा, उस टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको मिल जाएंगे। और यार ये 5-6 टॉपिक्स अगर तुम लोगों को आते हैं, अच्छे से तुम लोगों का ग्रास्प है, उसके बाद आई थिंक इट शुड बी इनफ। यार तुम अगर सही बताऊँ तो चेक पे अगर तमीज से काम करोगे, तो थोड़ी नॉलेज अच्छी है, तो इट कैन बी 1 लाख इजीली। थोड़ा सा सिस्टमेटिक, थोड़ा सा प्लानिंग, और एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आंसर दोगे, क्योंकि अगर आंसर खराब होगा, डाउनवोड जाएगा, रिव्यू होगा, आंसर को रेटिंग मिलेगी, और तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे आंसर खराब हो। तो तमीज से आंसर करोगे, अच्छा आंसर दोगे, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, तो यू विल बी गेटिंग अ डिसेंट अमाउंट एज वेल, और तुम लोग का जो चेक अकाउंट होगा वो भी सक्सेसफुल होगा। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, लाइक how much they pay for a particular answer. So basically the standard pay for an answer is 189 rupees, that is before TDS deduction, and check deducts 10% of TDS on that particular answer, that you can claim later when you are filling your ITR, you will get that amount back. But yes, they are just going to deduct 10% of that particular answer whenever you are answering on check. So now you must be thinking how much I earned from 969 questions. So it should be 969 into 189 minus 10% of it, because 10% of TDS, but not exactly. I would say it's much higher than this, at least 10%, 20%. I don't know exactly. So to know how much I am earning from check, how much I have earned from check, we can just discuss it in the next video. तब तक के लिए just be with me and just wait for my next video. Thanks everyone.